Opening bowler. I see the ball in the hands of Amit Tyagi. So we request Viren to start the match as soon as possible. Please place your fields. Start the match in next 2 minutes because we are already delayed. We are 25 minutes past 7 p.m. And we request umpires to keep a watch on the over rate. We want the overs, 10 overs to be finished in 45 minutes. And if there is any break in between, please make sure the stopwatch is stopped and reset when the match starts. So we want the innings to be completed in 45 minutes. I think both the umpires are ready, players ready, batsmen ready, scorer ready. Yes, camera team ready, and over to Dashrath Main's commentator. And let's start with the semi-final one. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the first semi-final of VKR Yangon Super League 2. Two of the table toppers, GC Boys and Ace Warrior, will face each other in the first semi-final of VKR YSL 2. It has been a great journey for both the teams. Both the teams are coming with the 4 wins in the league stages. This is the first over of the first semi-final of this tournament. GC Boys won the toss and they decided to field first. Ace Warrior will bat and will try to create a larger target. Umpires are ready. Here we go with the first ball. Full toss ball and it's put away for 4 runs. It is my stamina boundary and umpire signal the no ball. Umpire signal no ball for above waist, full toss above waist. Umpire has given a no ball and also would like to check whether it's a 6 or a boundary. It has been referred to the third umpire, and third umpire Shakib will look into the monitor. Umpire has passed the decision, it's a boundary. It's a fair decision from umpire, it's a boundary. And it's a free hit for Jabin. Good comeback by Amit Tyagi. He started with the full toss. That was put away for the boundary. The bonus runs for the Ace Warriors. He made a good comeback with the ball in the slog, giving no room to the batsman, but they could manage to steal a single. Now the next batsman, Ninad Rawal, will face his first delivery of this inning. It's going to be a great contest between GC and Ace Warrior. Down to the leg side, and umpire signal the wide ball. Again, Amit Tyagi lost his concentration. Ball went away outside the leg stump, and it is wide. Additional runs from the Ace Warrior. They got a fantastic start. Here comes Amit Tyagi with the second ball of the over. Full toss again. This time he plays down. No run. There was a chance for the bigger shot, but Ninad preferred to defend it. That's a good sign actually from my side. He's taking his time to set down. He knows the importance of his wicket. Amit Tyagi is making a good comeback. The umpires for the match are from Myanmar Cricket Federation. A good ball by Amit Tyagi, just a single down to the long on. So I was saying that both the teams are in great form, competitive sides, coming with 80% of the winning rate from the league matches. Here comes. It's a good ball again. Jabin tried to play it on the leg side, missed it.
Ball it down to his legs. No run. After the first mishup, Amit Tyagi made a good comeback. 4 deliveries and he's considered 8 runs till now. Jabin will face Amit Tyagi. The same attempt by the Jabin. He wanted to play on the leg side and there was a chance of run out. Ball hit the stumps and there is a huge appeal. And umpire has given it out. Umpire has given it out. And Jabin walks away, accept the umpire's decision. First big blow for the Ace Warrior. There's a loud cheer in the GC Boys Pavilion, on field as well. They're really happy. They started with a bad ball, which was punished for the boundary. After that, Amit Tyagi making a comeback. And now this time, there was a misjudgment. Jabin was walking for the single. Ninad stopped him. But till the time he get back to the crease, the fielder was quick enough to throw the ball and it's out. Jabin was at least half a feet away from the crease. It was a fantastic piece of fielding by the GC boys. That's what I was saying. Even if 1 or 2 deliveries, they are able to make the comeback. And this is a live example of it. The next batsman is Vishnu facing Amit Tyagi for his last ball. Good ball by Amit Tyagi. It's similar again. The result is same. Ball hitting down to the legs. And at the end of first over, 8 runs for the loss of 1 wicket. It was a good start by Ace Warrior. Unfortunately, luck didn't favor Jabin. There was a miscommunication and he had to sacrifice his wicket. GC boys must be happy. The way Amit Tyagi finished that over, the next bowler is ready to bowl the second over of this inning. The captain himself, Viren, the left-hand bowler. He bowls right pace, right length, and has the ability to swing the ball in both the directions. That makes very difficult for the batsman. Ninad will face Viren on strike. It's going to be high intensity game between two table toppers. Ace Warrior, GC boys had a similar points, but Ace Warrior had the advantage in the run rate. So they were the table toppers. But the GC boys has a equal potential. A fantastic squad. The captain himself is ready with the second over. The state umpire is Zinlai and the leg umpire is Kokolintu. Both of them are representing Myanmar Cricket Federation. We are thankful for the support, their accreditation and recognizing this league, giving it a special status to this tournament. Second over by Viren. Full toss ball, drive to the covers. The fielder was there. No run. So we were saying that we would like to thank our sponsors, VCare Pharmacy, Royal British International School for our broadcasting partner, the Coriander Leaf, good ball swinging inside onto the legs. Ninad giving respect to the bowler. A good sign. Ninad has shown a great character in this tournament. Takes his time, settles down, and then after start playing the bigger shot. That's what the indication of the good inning. Good ball again, and this time result favors GC boys. Ball swinging in inside edge onto the stumps. Ninad walks to the pavilion. He was the man in form. Now both the openers for Ace Warrior are back in pavilion. There's a wave of cheer in GC boys pavilion as well as on field. They are happy. The shoulders up, attacking Ace Warrior from all the sides. Both the openers are back into the pavilion. Both the openers were in great form. They have done wonderful job in their journey to the semi-finals.
This time straight to the stumps. Nitin giving a respect and defended comfortably with no run. GC boys, this was a maiden over actually with no runs. The maiden is very, very nice symbol for the bowler, especially in this format. So after the second over score is 8 runs for the loss of 2 wickets. Amit Tyagi will continue the attack. After a successful first over, will he able to continue the same momentum, or now momentum will shift to the ace warrior? This is a short format. Any single ball, any single over can change the momentum. Down the leg side, he tried to hit on the leg for the sixer, and it's a wide called by the umpire. It was far away from the leg stump. Amit Tyagi once again starts his over with the extra. Additional run for the ace warrior, they'll be happy. Oh, again full length balls, Yorker, and now third batsman back to the pavilion. GC boys are on fire. Fantastic piece of bowling from all the bowlers. Amit Tyagi coming with the second over. This time he got the wicket in his account. Vishnu must be unhappy. The man was in form. Ace Warriors are in trouble now. All 3 set batsmen were doing great in this tournament. Now struggling to face the GC boys. The captain himself, Karan, is on pitch now. A big responsibility for him to take his team for a good total, to give a good fight to the team in form GC boys. Ace Warrior is also in great form, but unfortunately they're struggling now. Karan is a great batsman. Now Amit Tyagi to Karan Bansal. Again a good bowler. He tried to push it down to the off, the inside edge, and single run. What a fantastic start by GC boys. Actually, it was a good start by Ace Warriors. Unfortunately, they lost the 3 wickets. Amit Tyagi will bowl his second ball to Nitin. Nitin tried to drive it to the off-stride, inside edge, into the hands of the keeper for no runs. We are thankful to our sponsor, Coriander Leaf, a food partner, one of the best Indian restaurants in Yangon, for their contribution to this league. Short of a length ball, he wanted to pull it to the leg side. Again, no run. Pressure is building on Ace Warrior. GC boys are charging up. Karan going to the batsman. This is the right sign from the captain that both the batsmen have a huge responsibility. Both are capable batsmen. They are capable of building a good score. Onto the legs. Umpire signaled wild. Nitin losing his balance. The ball was going quick towards his leg. He was trying to make a shuffle. He lost his balance. Ace Warrior gets one more extra run in their account. Again, a good ball here. Swing and a miss. No contact between the bat and ball. Again, a dot ball. Good piece of bowling by Amit Tyagi. He got his first wicket. He got bowled Vishnu. Our kit sponsor, the uniform sponsor, Garuda Lubricants. You can see the beautiful jersey, colorful jersey because of Garuda Lubricants. Now Amit Tyagi will bowl next ball. Full toss ball onto the legs. Wanted to flick on the leg side. There was no proper connect, but still could manage to take a single run. Nitin would like to change his bat. This is the last ball of this over. Sorry, I apologize. It's over. It's over. End of the over.
What a fantastic bowling by GC boys. Both the bowlers got 1 wicket each and 1 run out. Ace Warriors started with the flyer with the boundary on the first ball. Later on lost couple of wicket in quick succession. Now Jitendra Pathak will bowl the next over. We would also like to thank Vijay Shekhawat for the contribution from his companies, Shekhana Overseas and Division Pharmaceuticals. Thank you, Vijay Bhai. Also, My Stamina for sponsoring Maximum Boundaries, MTTM Shipping Company for maximum sixes, super striker of the match and tournament. You can see the moon shining bright into the sky. We are thankful to our other sponsors as well, जिनके सहयोग के बिना ये टूर्नामेंट नहीं हो पाता, और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर रॉयल ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल, AVs for sponsoring umpires kit. Jitendra Pathak will bowl the first ball of this inning. Short ball moving outside the leg stump for a 1 run. 1 extra run, umpire called it as a wide. जितेंद्र पाठक एक काफी अच्छे गेंदबाज है, काफी लंबा रनअप है इनका, लंबा कद है, अच्छा पेस जनरेट करते हैं. उनका सामना करेंगे नितिन सूद, जो तकनीकी रूप से काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, पारी बनाने की क्षमता रखते हैं. कैप्टन करण के साथ अपने टीम को अच्छी बॉल यहां पर कवर्स के ऊपर से खेल दिया है. अच्छा कैप्टन में कामयाब देखना होगा बाउंड्री, और ये 4 रन, माय स्टैमिना बाउंड्री. मैंने पिछले ही बॉल पे कहा था कि नितिन तकनीकी रूप से काफी बढ़िया बल्लेबाज है. गेंद को रीड किया, कवर्स के ऊपर से खेल दिया, उसे कैप ढूंढने में कामयाब, और नतीजा माय स्टैमिना बाउंड्री. वेलकम बाउंड्री फॉर एस वॉरियर आफ्टर लॉन्ग टाइम. काफी खुश होंगे अभी वो, थोड़ा सा प्रेशर कम होते हुए एस वॉरियर के बैट्समैन के ऊपर से. शॉर्ट गेंद लेकिन धीमी नीचे रह गई. थोड़े से चकित हो गए नितिन, वहां पर सरप्राइज हो गए. बॉल शॉर्ट थी, उसे एंटीसिपेट किया था उछाल आएगा, पर नीचे रह गई, जिस कारण बॉल से कोई कनेक्ट नहीं बैट का, और एक डॉट बॉल. फुल टॉस बॉल उसे स्ट्रेट में खेल दिया, उछाल दिया है. देखना होगा क्या होगा. फील्डर नीचे, और यह नतीजा कोरिएंडर लीफ सेफ हैंड्स. अमित त्यागी कोई चूक नहीं, जहां खड़े थे वहीं पर गेंद आई. आसान सा कैच यहां पर जीसी बॉयज के लिए, और एक सफलता नितिन के रूप में. काफी निराश हताश नितिन अपने आप से. फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी, किंतु डिस्टेंस नहीं दे पाए. गेंद चली गई सीधा लॉन्ग ऑफ पर खड़े अमित त्यागी के हाथों में. वहां पर कोई भूल चूक नहीं, काफी शांत दिमाग से आसानी से कैच पकड़ते हुए. ये था कोरिएंडर लीफ सेफ हैंड्स. पहली सफलता पाठक जी के लिए. जितने बॉलर ने बॉल करी है सबको एक एक विकेट मिली है. यहां पर रोहित कुमार सिंह स्क्रीन पर, दर्शक आपको देख रहे हैं, जनता आपको देख रही है. रोहित जी, अच्छी गेंद और ये आउट. पहली बॉल, और मनोज कुमार यादव वॉक करते हुए पवेलियन की ओर. यॉर्कर गेंद हवा में थोड़ी सी घूमी, अंदर आई, बल्ले से कोई संपर्क नहीं. नतीजा और एक सफलता. आधी टीम एस वॉरियर की अब तक पवेलियन पहुंच चुकी है, काफी ट्रबल में नजर आ रहे हैं. उसके सामने जीसी बॉयज बहुत ही अच्छी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए. दूसरी सफलता इस ओवर की, बैक टू बैक विकेट्स, हैट्रिक चांस बन रहा है यहां पर. अगले बल्लेबाज मयूर भुवड़, जो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेग साइड में काफी स्ट्रांग है, पावरफुल बैट्समैन है, अच्छी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं. करण उनसे उम्मीद करेंगे कि
पारी को किनारे ले जाए। अगली गेंद लेकर तैयार, ये हैट्रिक बॉल है। अगर ये विकेट मिलती तो इस सीरीज की पहली हैट्रिक होगी। ओहो, दिशा से भटके, वाइड गेंद, कीपर भी फील्ड नहीं कर पाए, काफी दूर थी। प्रयास पूरा किया वीरेन ने, लेकिन नतीजा वाइड +1 रन। वेलकम रन्स फॉर एस वॉरियर। अब सामना करेंगे करण बंसल, जो कि कप्तान है, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी गेम सेंस है उनमें, अच्छे बैट्समैन है। अच्छी बॉल अगेन, बहुत अच्छे से डिफेंड किया करण ने। सूझबूझ वाली पारी करण द्वारा यहाँ पर, वो जानते हैं उनके विकेट का महत्व। अब अगर एस वॉरियर को कुछ रिस्पेक्टेबल या अच्छा टोटल बनाना है तो करण बंसल को आखिर तक खेलना बहुत जरूरी है। जितेंद्र पाठक काफी खतरनाक शॉर्ट गेंद, थोड़ी सी उसे ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, पेस से डिसीव हुए, थोड़े से गिरने के बाद थोड़ी सी धीमी हो गई गेंद, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल में। और एक डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर है 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एस वॉरियर का वी केयर सभी को एनर्जी ड्रिंक दे, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं। कृपया करके दर्शक उसका लुफ्त उठाए। वी केयर फार्मेसी का स्टॉल लगा है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनर्जी ड्रिंक एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री। अगले बॉलर है आंसू, बाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छी बॉलिंग करते, कल बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग की थी उन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस थी उनकी। अब कप्तान उसी तरह की उम्मीद करेंगे आशु से कि गेंदबाजी में अच्छा करे। अच्छी गेंद आशु द्वारा, अच्छी शुरुआत यहां पर। मयूर ने उसे पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, कोई रन नहीं। अगली गेंद लेकर तैयार आशु, सामना करेंगे मयूर। अच्छी बॉल, वहां पर उसे ड्राइव करने की कोशिश की, बॉल थोड़ी सी एज लगकर डीप गली के हाथों में गई, कोई रन नहीं। ना केवल बॉलिंग बल्कि फील्डिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट कर पा रहे जीसी बॉयज। छोटी सी फुल लेंथ गेंद, उसे मारना चाहते थे, फिर एक बार बाहरी किनारा शुक्ला जी ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। हर एक गेंदबाज ने अच्छा परफॉर्म किया है जीसी बॉयज के लिए। फिर एक बार ड्राइव करना चाहते हैं यहां पर, थोड़ी सी, और एक विकेट का चांस, और एक विकेट। नतीजा वही, हर ओवर में एक एक विकेट गिरते जा रहा है। एस वॉरियर की पारी ताश की पत्तों की तरह ढह रही है, और एक अनफॉर्चुनेट मिस जजमेंट, मिस कॉल, जिसका नतीजा करण ने कॉल किया। फिर वीरेन वहां पर एक अच्छे फील्डर, उन्होंने फील्ड किया, वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीरेन कोई चूक नहीं वहां पर, और एक सफलता जीसी बॉयज के लिए, काफी खुश होंगे। बता दूं कि ये फर्स्ट सेमीफाइनल है इस टूर्नामेंट का, जो भी टीम जीतती है उसे सीधा फाइनल्स में प्रवेश मिलेगा। अगले बल्लेबाज निर्मल सामना करेंगे आशु का। अच्छी गेंद, उसे लेग की दिशा में खेलने की कोशिश की, किंतु चूके, गेंद टकराई पैरों पर और जा पहुंची सीधा गली में फील्डर के हाथ में। अब तक 5 गेंदें डाल चुके आशु, कोई रन नहीं इस ओवर में। फुल एलन गेंद, उसे ड्राइव करने की कोशिश की, गैप ढूंढने में कामयाब। वहां पर देखना होगा चौका हो सकता है या नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर, पैरों से रोक लिया यहां पर। ये दूसरा रन देखना होगा, और तीसरा रन था ये। आसानी से 3 रन पूरे कर चुके हैं यहां पर।
एक बार हम चेक करना चाहेंगे बाउंड्री है या नहीं, यहाँ पर थर्ड अंपायर चेक करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी क्रूशियल मैच है, हर एक कोई डाउटफुल या क्लोज कॉल थर्ड अंपायर चेक करेंगे। It's a fair fielding, only 3 runs. Good piece of fielding by GC boys. 1 run saved for the team. Good attempt. Nirmal will retain the strike. And Shubhadeep Mitra comes with his first delivery of this inning. It's a 6th over. Down to the leg side, and it's a wide. A big wide to start the over with. ये मैच होने जा रहा है जीसी बॉयज और एस वॉरियर के बीच। अगेन डाउन टू द लेग, अंपायर सिग्नल इट वाइड अगेन। तो जीसी बॉयज ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया, काफी सक्सेसफुल रहा निर्णय इनका अब तक। Full toss ball, wanted to play on the leg side. The fielder was there on the leg side. No run. It was a full toss. Could have been a again the fuller length ball, wanted to play on the leg side. Missed it completely. Ball hits to the legs. No run. Again a dot ball. Consecutive dot ball by Shubhadeep Mitra. Good comeback after first 2 wides. So Ace Warrior was asked to bat first. They started really good on the first ball. Unfortunately, उसके बाद विकेट गिरते गई। अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई और एक डॉट बॉल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जीसी बॉयज का हर एक बॉलर एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एक प्लान के साथ उतरे इस मैच में। थोड़ी सी आगे गेंद, फिर एक बार चूक, काफी बाहर थी गेंद, बॉल तक पहुंच नहीं पाए, कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बाहर गेंद, अंपायर का निर्णय वाइड। मेन अंपायर है जिन लाइन फ्रॉम म्यांमार क्रिकेट फेडरेशन, उनको असिस्ट कर रहे कोकोलिंतु, म्यांमार क्रिकेट एकेडमी के कैप्टन। फुल टॉस बॉल straight onto the thighs. Is looking at the umpires. Review from the batsman for the west height no ball. It's a review from the batsman side. Refer to the third umpire. Shakib will look into the screen and give his decision. तो हम कह रहे थे कि हमारे सारे स्पॉन्सर जिनके बिना टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं हो पाता था, It's a fair delivery. It's a fair delivery given by the umpire. निर्मल थोड़े से नीचे झुक गए थे, गेंद थाइज और पेट के बॉर्डर के थोड़ी नीचे लगी, स्टंप पे स्टंप लाइन से थोड़ी सी नीचे थी गेंद, इस कारण इसे फेयर डिलीवरी करार दिया जाएगा।
Loss review for Ace Warrior. Full toss again to the day legs, and it's a 6. It's a MTTM maximum, the first MTTM maximum of this inning over the mid wicket. Full toss, juicy full toss. Nirmal making no mistakes and punish that ball for the 6 runs. The first sixer of this match. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. ओवर. डॉट बॉल, इसके पहले वाला डॉट बॉल था, नो बॉल नहीं था. Okay, show it to them, get it checked. जबरदस्त फॉर्म में टेबल टॉपर 1. सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज के हमारे फूड पार्टनर है बॉम्बे बाइट्स. बॉम्बे बाइट जो आज के हमारे फूड पार्टनर है, आप इंडियन स्नैक्स का लुत्फ उठा सकते हैं. टू माय लेफ्ट यू कैन एंजॉय दी स्नैक्स फ्रॉम बॉम्बे बाइट जो आज के फूड पार्टनर है. ये मैच हो रहा है जीसी बॉयज और एस वॉरियर के बीच. जीसी बॉयज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया. तो आज बॉम्बे बॉयट्स के शेफ जो है, जो वेटर है, जो स्टॉल पे रिप्रेजेंटेटिव है, पानी पूरी बनाते हुए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. उसी के साथ मसाला डोसा की भी तैयारी करी है उन्होंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. थैंक यू सो मच बॉम्बे बॉयट्स फॉर योर कंटिन्यूअस support as a food partner in this tournament. They have a grocery store as well. You can order or buy the Indian grocery from them. इसी के साथ थोड़ा सा बॉल काउंट चेक करते हुए और फाइनल नतीजा की ओवर है. मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो स्क्रीन पर स्कोर आता है वो थोड़ा लेट आता है. प्लीज नोट इट डाउन. दोनों अलग नेटवर्क पे चल रहे हैं. आपको इंटरनेट की सिचुएशन पता है, यहाँ पर काफी स्पीड स्लो है, उस कारण स्क्रीन पे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है. रियल टाइम स्कोर के लिए आप क्रिक हीरो ऐप वहां पर रिफर कीजिए. ओवर की समाप्ति. अगली गेंद लेकर तैयार आशु. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उसे लेग की दिशा में खेल गया है. वहां पर अच्छी फील्डिंग. थोड़ी सी फिर एक बार मिसकम्युनिकेशन, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं. का नंबर 7Q3471. 7Q3471. प्लीज टेक आउट योर कार, इट्स ब्लॉकिंग अदर्स. फुल लेंथ गेंद, उसे थोड़ा सा पंच करने की कोशिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में. अमित त्यागी तैयार. काफी स्ट्रांग हमें कल उन्होंने एक अच्छा विकेट लिया था रनआउट के रूप में. आज भी अच्छी एक कैच ली आसानी से. 1 रन मिलेगा. स्ट्राइक रोटेट होते हुए बल्लेबाजी करेंगे निर्मल डोडिया. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थोड़ी से धीमी आई, गिरने के बाद अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जा पहुंची वीरेन के हाथों में. कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन डॉट बॉल. अगली गेंद को लेकर तैयार. थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर, उसे कवर्स की दिशा में खेल गया. मिस फील्डिंग. यहां पर देखना होगा क्या सिर्फ 1 रन पे संतुष्टि की करण ने. जानते हैं कि 2 रन आउट हो चुके हैं. सूझबूझ यहां पर करण द्वारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. उन्हें पता है, बखूबी पता है कि अगर अच्छा टोटल पुटअप करना है तो दोनों बैट बल्लेबाजों को एक लंबी पारी खेलनी होगी. काफी ट्रबल में थे एस वॉरियर. पिछले 1 ओवरों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, रनों की गति बढ़ती हुई.
अच्छे संकेत एस वॉरियर के लिए। लेग साइड की दिशा में गेंद, वहां पर पैरों पर ब्रश करते हुए बाउंड्री लाइन की दिशा में विजय दौड़ते हुए देखना होगा रोक पाएंगे या नहीं। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर, पैरों से रोक ली गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के अंदर। हम एक बार चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर, हर एक क्लोज कॉल यहां से हम चेक करेंगे, बहुत ही निर्णायक होगा ये, बिकॉज ये हाइट इंटेंसिटी मैचेस है। जहां पर भी थोड़ी सी शंका हो वहां पर हम चेक करेंगे। हमने कप्तान से ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस मैच से पहले। थर्ड अंपायर शाकिब देखेंगे। फेयर है, बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर। बॉल इज इनसाइड द बाउंड्री रोप, देयर इज नो कंटैक्ट बिटवीन फील्डर एंड द बाउंड्री। फुल टॉस बॉल आउटसाइड के बाहर, बाहरी किनारा, वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर शुक्ला जी ने करण को वापस भेज दिया, लेकिन इस बार सेफली बैक टू होम। बाल बाल बचे इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 35 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। इट्स अ मैंडेटरी बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग साइड एंड बॉलिंग साइड, इट्स अ मैंडेटरी बैटिंग पावर प्ले। प्लीज सेट योर फील्ड अकॉर्डिंगली। थोड़ी सी बातचीत यहां पर कप्तान और उप कप्तान मृणाल खजूरिया और वीरेन के बीच। उन्होंने अपने अनुभवी गेंदबाज जितेंद्र पाठक जिन्होंने पहले ओवर में 2 सफलताएं ली थी, बैक टू बैक विकेट्स, उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। पावर प्ले में आप गेंदबाजी कीजिए। पावर प्ले में गेंदबाजी करने काफी प्रेशर वाला काम होता है और हर कोई बॉलर उसे झेल नहीं पाता। उसी कारण दे वेंट बैक टू देयर मेन बॉलर जितेंद्र पाठक, हु हैज डन excellent in his first over, grabbed to back wickets that set up the momentum in the favor of GC boys. Karan is playing slow and stable. Score is 35 runs. 35 runs, 6 wickets, 7 overs. Nirmal contributing good for his team, 10 runs in 10 ball, whereas Karan is playing the anchor's role, slowing down the momentum for GC boys, building up an inning which is much required at this stage. Last 3 overs are remaining for this inning. AS Warrior will try to maximize the score, whereas GC boys will put their best to take the wickets or slow down the run rate to have a comfortable target for them. Here we go with the power play over 8th over of this inning. Jitendra Pathak will bowl to Nirmal Dodia. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया। फिर एक बार मिड विकेट की ओर से एमटीटीएम मैक्सिमम। बहुत ही क्रूशियल पारी ये एस वॉरियर के लिए। निर्मल ने कोई चूक नहीं की। शॉर्ट ऑफ अ लेंथ गेंद, उसे रीड कर लिया, थोड़ा सा शफल किया ऑफ स्टंप की ओर और धकेल दिया वहां पर सीमा रेखा के बाहर। नतीजा एमटीटीएम मैक्सिमम। क्रूशियल रन्स फॉर एस वॉरियर्स, दे आर हैप्पी। 41 रन्स, 7.1 ओवर्स, 6 विकेट्स। रन रेट थोड़ा सा 6 रन प्रति ओवर के नीचे, 5.72 रन रेट। यहां पर मृणाल थोड़ी बात करते हुए, उप कप्तान है, वो जानते हैं निर्मल को बखूबी से। जितेंद्र पाठक जो कि कंपैरेटिवली न्यू है म्यांमार क्रिकेट के लिए, अगली गेंद करेंगे निर्मल डोडिया को। फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, लेकिन इस बार कोई रूम नहीं, अच्छी पेस के साथ की थी गेंद। पॉइंट के हाथों में यहां पर जोरदार अपील, अंपायर ने उसे खारिज किया है। अच्छी सूझबूझ कही जा सकती है। इट्स गुड टू रोटेट द स्ट्राइक। जब आप 6 मारते हैं, बाउंड्री मारते हैं, उस कारण स्कोरबोर्ड बढ़ते रहता है। बॉलर को थोड़ा सा परेशानी होती है, फील्डर्स को परेशानी होती है। अच्छी शुरुआत इस ओवर की, इस पावर प्ले ओवर की। अब तक 7 रन आ चुके हैं 2 गेंदों में। अब सामना करेंगे करण बंसल, कैप्टन ऑफ एस वॉरियर।
अच्छी गुड लेंथ गेंद, थोड़ी गिरकर थोड़ी सी बाहर कवर्स की ओर से खेलना चाहते थे करण बंसल, पूरी तरह से चूके, कोई संपर्क नहीं बॉल और बैट में। डॉट गेंद, गिरकर थोड़ी सी बाहर मूव होती हुई गेंद। तैयार जितेंद्र पाठक बॉलिंग करेंगे करण बंसल को। थोड़ी सी फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, आसानी से फील्ड कर लिया है रवि ने वहां पर, सॉरी माफ कीजिए कवर्स के ऊपर से। निर्मल डोडिया फिर एक बार स्ट्राइक पर, अब तक अच्छी पारी खेल चुके अपनी टीम के लिए। ओहो, इस बार फुलर लेंथ गेंद, शॉर्ट गेंद एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन यहां पर फुलर गेंद सीधा स्ट्रेट ऑन टू द स्टंप्स, और एक सफलता मिलती हुई जीसी बॉयज को। निर्मल काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, जो मच रिक्वायर्ड इनिंग थी शायद वो इनिंग खेल रहे थे अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा एकाग्रता भंग हुई, एंटिसिपेट नहीं किया गेंद को, गेंद जाकर टकराई सीधा स्टंप्स पर, और एक बल्लेबाज पवेलियन की ओर। 7वां विकेट निर्मल डोडिया के रूप में, और ये तीसरी सफलता जितेंद्र पाठक के नाम। उन्हें रिप्लेस करेंगे रूहान, जो कि बांग्लादेश से है। टेप बॉल क्रिकेट का काफी गहरा अनुभव है इन्हें। अजीजेश गिरी जो जीसी बॉयज के स्पॉन्सर है, उन्होंने सबके लिए एक एक चाय बोल दी है। खुशी से फूले नहीं समा रहे, बोल रहे कि और एक विकेट आएगा तो समोसा भी देंगे सबको। अच्छी गेंद, फिर एक बार थोड़ी सूझबूझ वाला शॉट था यहां पर, लेट कट थर्ड मैन की दिशा में, आसानी से 1 रन। ये एक बहुत जरूरी है किसी भी पारी में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8वां ओवर खत्म हो चुका है। रन है 44 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। कि जब आप बड़े शॉट खेलने में असफल रह रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सिंगल रन निकाले, उस कारण स्ट्राइक रोटेट होती है, स्कोरबोर्ड बढ़ता है, और एक खराब गेंद का आपको इंतजार करना चाहिए। रूहान ने एक अच्छा सेंस बताया कि पहली गेंद थोड़ी आउट, उसे प्रहार ना करते हुए 1 रन ले लिया है थर्ड मैन की दिशा में। फिर एक बार कप्तान इस पारी की सेकेंड लास्ट ओवर करेंगे। पहले ओवर में सफल रहे थे, मात्र 1 रन देकर 1 विकेट लिया था उन्होंने, माफ कीजिएगा मेडन था वो ओवर। वीरेन बिजलवान अगली गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे, कोई रूम नहीं दे रहे, कोई मौका नहीं दे रहे। स्टंप्स पर आ रही है गेंद, जिस कारण बल्लेबाज भी थोड़ा कंफ्यूज है कि अगर बड़े शॉट के लिए जाए तो गेंद मूवमेंट करती है। अच्छा डिफेंस रूहान दौरा यहां पर। आगे बढ़कर मारने की कोशिश, वहां पर पैरों पे टकराई गेंद, फील्डर थोड़े से दूर थे, उसका फायदा उठाया। 1 रन बढ़ता हुआ एस वॉरियर के खाते में। 45 रन 8.2 ओवर्स के बाद। अब कप्तान करण बंसल स्ट्राइक पे है। उसे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास वहां पर पूरी तरह से चूके, काफी क्लोज कॉल था ये। वीरेन इस ओवर में भी अच्छी शुरुआत करे है, अब तक मात्र 1 रन दिया है 3 गेंदों में। ये सेकेंड लास्ट ओवर है इस इनिंग का। एस वॉरियर को रन्स चाहिए होंगे, सिंगल डबल अब शायद ही कुछ बड़ा इंपैक्ट करेंगे बड़े टारगेट के लिए। आगे की ओर गेंद, उसे बड़ा शॉट मारने का फिर से एक बार प्रयास, लेकिन अच्छा संपर्क नहीं वहां पर। लॉन्ग ऑन की दिशा में प्रदीप गेंद को रोक लिया, मात्र 1 रन। रूहान फिर से सामना करेंगे। आगे बढ़कर मारने का प्रयास, बाहरी किनारा, वहां पर मृणाल ने अच्छा प्रयास किया लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। उनके ग्लव्स से गेंद छू गई, उसके कारण थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, जिसका कारण
शायद बाउंड्री भी हो सकती थी। शुक्ला जी जरूर थे वहां पर, लेकिन गेंद काफी फास्ट थी। अच्छा अटेम्प्ट यहां पर जीसी बॉयज के फील्डरों द्वारा, रोक के रखा है एस वॉरियर को अब तक। आगे की ओर गेंद, उसे अच्छा संपर्क यहां पर कवर्स के ऊपर से गेंद दौड़ती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, अच्छा प्रयास किया लेकिन इस बार रोकने में नाकामयाब। नतीजा माई स्टैमिना बाउंड्री। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर है 51 रन्स आफ्टर 9 ओवर्स विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 51 रन, 51 रन, 7 विकेट्स, 9 ओवर्स। थोड़ी सी धीमी है रनों की गति, यह आखिरी ओवर है, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे। अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे उप कप्तान मृणाल खजूरिया। इस सीरीज में काफी कम गेंदबाजी की उन्होंने, जितनी भी करी अच्छी करी है। कप्तान ने विश्वास बताया है मृणाल के ऊपर। इस समय जानते हैं कि एक अनुभवी गेंदबाज की जरूरत है, एक अच्छे ओवर की जरूरत है। अब तक अच्छी गेंदबाजी करी है जीसी बॉयज ने, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, नया वेरिएशन ट्राई करके अपने ट्राइड एंड टेस्टर बॉलर के हाथ में बॉल दी है मृणाल खजूरिया, जो बॉलिंग करेंगे रूहान को। एक अच्छे बल्लेबाज है, प्रैक्टिस मैचों में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। Here comes the first ball of the last over of first inning. बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अंदरूनी किनारा, कीपर के हाथों में गेंद नहीं है और ये 4 रन। अनफॉर्चुनेट, अनलकी बैट्समैन बॉलर यहां पर। अंदरूनी किनारा लगा, वेलकम बाउंड्री, माई स्टैमिना चौका। खुशी की लहर यहां पर एस वॉरियर के खेमे में। जैसे भी आए रन आने चाहिए इस मौके पर। यह आखिरी ओवर है इस इनिंग का। 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9.1 ओवर के बाद। थोड़ी सी फील्डिंग में अलर्ट रहने की अपील कप्तान द्वारा। बाहर की ओर गेंद, यहां पर 1 रन लेने में कामयाब। इट्स अ वाइड सिग्नल बाय अंपायर, वाइड +1। गेंद थोड़ी सी बाहर थी, इस कारण अंपायर ने इस बार रिव्यू लिया है कप्तान वीरेन ने। रिफर टू द थर्ड अंपायर फॉर वाइड। ओवर टू यू शाकिब। सो एक और एक्स्ट्रा रन, उसी के साथ और एक वाइड और उसके साथ एक दौड़ लगाई। 2 रन मिलेंगे एस वॉरियर को बिना कोई गेंद खर्च करे हुए। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद वाइड +1। अब ये दूसरी वैलिड गेंद करेंगे मृणाल, सामना करेंगे करण बंसल। फिर एक बार थोड़ी सी बाहर गेंद, उसे कवर्स के दिशा में खेल दिया है, गैप ढूंढने में कामयाब, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर जीसी बॉयज द्वारा। मात्र 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। अच्छा तालमेल जीसी बॉयज के फील्डर के बीच में, दोनों फील्डर के बीच में गैप निकालने में कामयाब थे करण बंसल, किंतु रोक लिया उन्होंने बाउंड्री रेखा के पहले ही। नतीजा मात्र 2 रन एस वॉरियर के लिए।
अच्छी गेंद, उसे उठा दिया करण ने हवा में, वहां पर फील्डर मौजूद प्रदीप, और ये आसानी से कैच लपक लिया है। एक और सफलता इस बार मृणाल खजूरिया के खाते में। अच्छा संपर्क था लेकिन हाइट मिली उसे, डिस्टेंस नहीं मिल पाया। लगभग 1.5 मीटर बाउंड्री के अंदर उसे आसानी से कैच कर लिया प्रदीप ने। ये रहा कोरिएंडर लीफ, सेफ हैंड्स, और एक सफलता जीसी बॉयज के लिए। पहला विकेट मृणाल के लिए। कप्तान करण के रूप में थोड़े से हताश होंगे करण, समय बिताया था, सेट हो चुके थे, पर हालात ऐसे कि उन्हें बड़े शॉट की जरूरत थी। उन्होंने प्रयास किया, कनेक्ट हुआ बॉल, लेकिन उसे डिस्टेंस नहीं दे पाए। आसानी से कैच बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर प्रदीप के द्वारा। नए बल्लेबाज हुमायूं कबीर, जो कि बांग्लादेश से है, टेप बॉल का अनुभव है, सामना करेंगे मृणाल खजूरिया का। अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने अब तक। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार मृणाल खजूरिया, सामना करेंगे हुमायूं कबीर। आगे गेंद, एक बार अंदरूनी किनारा, अच्छा फील्डिंग वहां पर वीरेंद्र द्वारा, थोड़ी सी भूल चूक का एक बार, और ये तीसरा रन आउट इस पारी का। फिर से तालमेल में कमी, मिसकम्युनिकेशन, और नतीजा आउट। रूहान यहां पर विकेट खो चुके हैं। अंपायर से थोड़ा कंसल्ट करते हो कि कौन आउट है। रूहान काफी नाराज, वो स्ट्राइक चाहते थे क्योंकि वो सेट हो चुके थे, किंतु वीरेन वहां पर अंदरूनी किनारा लगने के बावजूद अच्छी कीपिंग करी उन्होंने, जिस कारण थोड़ी सी तालमेल में कमी, और नतीजा और एक बल्लेबाज पवेलियन की ओर जाता हुआ। ये 9वां विकेट इस पारी का। अब बैटिंग पर उतरे हैं आदित्य केडिया। 2 गेंदें शेष इस पारी की अब तक। अच्छी सूझबूझ वाली गेंदबाजी की मृणाल खजूरिया ने, कोई लेंथ नहीं दे रहे बल्लेबाज को, टाइट रखा हुआ है। थोड़ी सी बाहर की दिशा में गेंद, शायद किनारा लगा, थोड़ी सी आवाज थी वहां पर। और एक डॉट बॉल, डॉट बॉल इज अ क्राइम। ये आखिरी ओवर है। एस वॉरियर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। आदित्य केडिया उनसे बात करते हुए, एक बड़े शॉट की उम्मीद होगी एस वॉरियर को अपने बल्लेबाज हुमायूं कबीर से। अब तक 59 रन हो चुके हैं। यह आखिरी विकेट है और आखिरी बॉल है इस पारी का। देखना होगा कि कितने रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट का प्रयास यहां पर, और ये रहा एमटीटीएम मैक्सिमम। बड़ा प्रहार, यहां पर थोड़ा चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर एक बार। अच्छा कनेक्ट वहां पर, रूम मिला, जगह मिली, उसका फायदा उठाया, उछाल दिया उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये अंपायर एक बार चेक करके अपना फाइनल डिसीजन देंगे। इट्स अ 6, इट्स अ एमटीटीएम मैक्सिमम, फील्डर ने भी बता दिया है। बहुत जबरदस्त क्लोजिंग करी इस ओवर की, जिसकी उम्मीद थी इस वॉरियर को, वो आखिरी गेंद पर आया। मृणाल जो बढ़िया गेंदबाजी करी उन्होंने, अनलकी रहे पहले गेंद पर, अंदरूनी किनारा, 4 रन आ गए उनके ओवर में। उसके बाद अगली 4 गेंदें बहुत बढ़िया सटीक करी, एक विकेट भी लिया, किंतु आखिरी गेंद पर हुमायूं ने एक जोरदार प्रहार किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अच्छा टाइम किया गेंद को, अच्छा संपर्क, 6 रन। इसी के साथ पहली पारी खत्म। एस वॉरियर का स्कोर है 65 रन, 65 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब जीसी बॉयज को जीतने के लिए चाहिए 66 रन, 6.6 रनों की गति से। आसान लक्ष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाईएसएल 1 में रन आसानी से आ रहे थे, वाईएसएल 2 में पिच बदल गई है, लाइट्स बदल गई है, बॉलर और बैट्समैन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, तो कोई भी रन 65 प्लस कहीं पर भी गेम जा सकता है। थोड़ा सा लो मान सकते हैं कि बाकी मैचेस की तुलना में।
Division is a dynamic and growing pharmaceutical company in Myanmar, with specialization in the importation, distribution, and regulatory services for healthcare and pharmaceutical products. Division Company has a strong track record from its experienced promoters, and is poised for continued success and growth in the sector. Shekhana Overseas is a rapidly growing company in the FMCG sector, and we are expanding into the trading and export of local products from Myanmar. In addition to trading activities, Shekhana Overseas also manufactures a wide range of products, including spices, atta, and other household items. Known for fast and reliable services, Shekhana Overseas has built strong connections with leading business firms across Myanmar. Nabi from Mavericks. So this is going to be a quarter-final match. We call it eliminator. So whoever loses this match will be eliminated from the tournament, and whoever wins this match will play semi-final 2 tomorrow against the winner of the first match. So we have Kokulintu here for the toss. It's the regular Indian coin. Who will call? Okay, Hitesh will call. Tails is the call. Tails it is. And we'll bowl. Real Kings won the toss and chose to bowl first. Mavericks will bat. Anything to highlight? Any strategy? Any game plan for this exciting quarterfinal eliminator? Nothing. I think the strategy is something I think let's see on the ground. I think these formats, what we are playing are something which can just change in an over. So I think both of the teams are definitely going to put their best, and let's see. I mean, who is successful in doing that? Yeah, well said, Hitesh. Anything from Nabi? Any game plan for this most important tournament of the? I mean, most important match of this tournament? Well, I mean, we have a good strategy. You know, we have been at the bottom of the table, but we have done a very good job, and I guess we will continue with this form, and we will try to fight back, and I hope we will give our best for today's match, and we will come back. Thank you, Nabi. Thank you, Kokulintu. And we will move on to the match now. Thank you, everyone. Real Kings won the toss and chose to field, so Mavericks will bat in the second match. And over to you, Dashrath, for the second innings of the first match. Thank you very much. It's slightly lower than the average scored so far, but still, I believe Ace Warriors can put up a real fight. They have a very good bowling side. So I think the pressure is on GC boys to manage the batting lineup and not to lose wickets here. And Ace Warriors will be trying to get some quick wickets to put some extra pressure on GC boys. 66 is the target. Manoj Yadav, in charge of the bowling unit. He has been consistent throughout the tournament, the purple cap holder for the highest wicket taker so far. And Viren, captain of GC boys, ready at the opening position. Zinline can start. We are ready. We are ready to start.
Pradeep Chauhan at the non-strikers end, not the regular opening batsman for GC Boys. There's some changes in the batting order. Manoj keeping it tight there, straight into the wickets. Viren trying to flick it on the leg side, but straight to short mid wicket there to Karan, captain of Ace Warriors. Check. Full length, driven towards deep cover for a single. And we have Pradeep Chauhan on the strike now. GC Boys and Viren both off the mark with a single. Outside off there, trying to cut it towards point region, but mishitting it inside edge onto the pitch. Dot ball. That's very good bowling by Mr. Manoj. Keeping his consistent line and length throughout the tournament, and we can see the same display here as well in this crucial match. Down leg side, probably a full toss ball, well flicked through the square leg. There was a gap there, picked the right gap, placed it quite well for a boundary. It's My Stamina boundary, first boundary for GC Boys. Good comeback there, straight onto the legs. Couldn't connect the ball, dot ball. At the end of 1 over, GC Boys are 5 for no loss. And second over is being bowled by Vishnu. Also one of the consistent performance throughout the tournament, both in bat and ball as well. Down leg side, wide called. One extra run to GC Boys. Leg side again. There is no protection there. Viren just gliding towards deep fine leg. Okay, that was leg by, my apologies. No protection there. So leg buys and an easy boundary there. 4 extra runs for GC Boys, so score goes to 10 for no loss. These are important runs. Down leg side again,
White called. Not getting the rhythm here, Vishnu. Hope he can get back to his line and length. Leg side again. White called. 3 whites in this over so far. These are crucial runs, free runs for the batting team, and plays an important role in this low scoring game. Leg side again. White called. Four whites. Leg side again, wide again. 5 wides of this over. That was good comeback. Good line there. Viren trying to flick it on the leg side, missing the line. Straight onto the pads, no run there. That was a much needed dot ball for Ace Warriors. Offside again, straight to chance of run out there. Okay. Probably a direct hit was needed there. Missed by Nitin. Good fielding and good running as well. That was a quick single taken by Viren and Pradeep. These are important runs which makes big difference at the end of the match. Stealing singles from the hands of the fielder. Kisko. Trying to play towards leg side but outside edge. Straight to the short third man protection there behind the field, behind the keeper. Dot ball. Driven through the long on for a single. One ball to go in this over. That was well struck. Over deep mid wicket for a My Stamina boundary. One bounce over the boundary. That was well struck by Viren. So at the end of 2 overs, GC boys are 20 for no loss. Getting close to their target now. Required run rate is below 6. Ace Warriors need to pick some crucial wickets here to bring the team back to the game. If not, it looks like an easy encounter for GC boys. So Aditya is back to the attack, new bowler. He has been quite good in terms of getting quick wickets. In last couple of matches we have seen his performance. Let's see what he can do here. That was a good attempt there at short square by Ruhan, missing it. Single towards square leg. That was well struck, straight down the ground for a boundary. No fielder there. My Stamina boundary, second boundary for Viren.
That was well struck, straight back behind the bowler. It's dot ball. Overthrow. Overthrow कौन किया? Overthrow किया कौन किया? पता नहीं. My stamina chauka. My stamina 4 runs. बहुत बढ़िया शॉट प्रदीप के द्वारा. 2 रन लिया इसके साथ. कबीर के द्वारा अपील किया है. After 3 over, GC Boys 32 runs. 3 ओवर के बाद 32 रन बिना कोई विकेट नुकसान के. चौदह ओवर करने के लिए निर्मल जी आया है. सामने करेंगे वीरेन भाई. It's wide. बहुत बढ़िया बॉलिंग. इसके साथ 1 रन चुरा लिया. अब स्ट्राइक पे आया है प्रदीप. बहुत बढ़िया शॉट बाय वीरेन. माई स्टेमिना चौका. इसके साथ वीरेन का स्कोर हुआ 16. जीसी बॉयज 39.
एक रन ले लिया वीरेन ने। अब स्ट्राइक पे है प्रदीप। इस ओवर का आखिरी गेंद। दो रन लिया प्रदीप ने। मयूर के द्वारा फील्डिंग मिस हुआ इधर। इसके साथ 42 runs after four overs. "24 required in 6 overs. बॉलिंग करने के लिए करण बंसल। बहुत बढ़िया शॉट वीरेन के द्वारा बाउंड्री के पास फील्डिंग किया है, एक रन ले लिया। बहुत बढ़िया शॉट प्रदीप के द्वारा, अच्छा फील्डिंग बाउंड्री लाइन के पास। अच्छा बॉलिंग करण बंसल। बढ़िया एज बाउंड्री की तरफ। माई स्टेमिना चौका, माई स्टेमिना 4 रन वीरेन के द्वारा। स्कोर नाउ 49। GC Boys 50 runs। करण बंसल का इस ओवर का आखिरी गेंद। प्रदीप चौहान लास्ट बॉल में 2 रन लिया। इसके साथ जीसी बॉय का स्कोर हुआ 52 रन इन 5 overs। 14 runs रिक्वायर्ड इन 30 balls। प्रदीप चौहान खेल रहे 18 पे, वीरेन खेल रहे 23 पे।
बहुत बढ़िया शॉट, माई स्टेमिना चौका वीरेन के द्वारा। गुड कम बैक बाय मनोज। नहीं नहीं, पावर प्ले इसके बाद 8 ओवर ना लिया है, नहीं लिया पता नहीं। बहुत बढ़िया फील्डिंग बाय मनोज यादव। जीसी बॉय को 10 रन चाहिए। Easy single for Viren. Now score is 57 run in 5.5 overs. It's bold. It's AV's out. Pradeep Chauhan. प्रदीप चौहान क्लीन बोल्ड हुआ है मनोज यादव जी का बॉलिंग में। इसके साथ 6 ओवर खत्म हुआ है। आफ्टर 6 ओवर 57, द लॉस ऑफ 1 विकेट। जीसी बॉयज रिक्वायर्ड 9 runs in 24 balls. बैटिंग के लिए आया दादा। एक मिनट, प्लीज होल्ड। प्रमोद, इज इट ओके? ओके, यू कैन स्टार्ट। It's wide. रोहित बैटिंग पे है। ठंड में हिल रहे रोहित। It's bold. AV is out. AV's ऑनलाइन स्टोर आउट रोहित करण के द्वारा। बहुत बढ़िया बिल्डिंग। रोहित का हैप्पी बर्थडे रोहित। थैंक यू से नहीं चलेगा, उधर गाजर का हलवा भी है। बैट्समैन, अगला बैट्समैन आशु। दो दो
बहुत बढ़िया बॉलिंग करण के द्वारा। आशु ने जस्ट प्लेड किया है। जीसी बॉयज रिक्वायर्ड 8 रन इन 22 बॉल्स। 22 बॉल में 8 रन चाहिए। बहुत बढ़िया शॉट आशु के द्वारा। अब स्ट्राइक पे आया दादा, करण का सामने करेंगे। नेक्स्ट बॉल करण पंसल टू दादा। Just is end of 7 over. After 7 over, 59 runs, loss of 2 wickets. GC boys required 7 runs in 18 balls. 3 ओवर में 7 रन चाहिए। पावर प्ले लिया क्या पहला? इट्स मैंडेटरी पावर प्ले। अंपायर और कितने लोग हैं? 1 2 1 रन चुरा लिया इधर आशु ने। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दादा और आशु के द्वारा। आदित्य केडिया टू दादा। वो भाई साहब दादा बीट हुआ है। बहुत अच्छा बॉलिंग आदित्य की तरफ। और 1 रन चुरा लिया दादा इधर। इसके साथ जीसी बॉयज 61। सिर्फ 5 रन चाहिए। It's wide.
requires 2 runs. बॉलिंग के लिए जोबिन आया है. फिर दादा ने सिंह एक रन चुरा लिया इधर. इट्स माई स्टेमिना चौका. इसके साथ जीसी बॉयज won the match. GC by won by 8 wickets. प्रेजेंटेशन कौन करेगा? मुझे नहीं आता. निर्मल 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 निर्मल. अरे अरे वो कप ले लो यार. कप ले लेगा. कौन सा रहेगा? मैन ऑफ द मैच. सुपर स्ट्राइकर लेगा. सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच. दोनों ना.